राजाओं का राजा, कौन है प्रभुओं का प्रभु, वो है यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं आज प्रभु को, एक बार फिर से उसके भवन में आए हैं, उसकी आराधना करने के लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को। आमेन। Who is Jesus? Who is the King of Kings? Who is the Lord of Lords? That is Jesus. Hallelujah. We thank God for the privilege that He has given us, that we can come into His presence to worship Him in spirit and in truth. And this afternoon we just want to thank you, Lord, for your love and your mercy, O God Almighty. Thank you, Father. I'll ask Sunila to lead us in a word of prayer. Let's all pray. Heavenly Father, we come to your throne of grace, Lord Jesus. We thank you for this day that you have given us, Lord. And Father, as we remember you, what you have done on the cross for us, Lord Jesus, till we meet again, Lord, we will continue remembering you in this way, Lord. Father, I commit each and every one in your hands. And whoever's watching on Facebook, Lord, I pray, Lord Jesus, they'll be touched by the worship, Lord Jesus, and they will accept you as their Lord and Savior. In Jesus' name I ask and pray. Amen. Hallelujah. Just want to welcome you all in Jesus' name. प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक को स्वागत करते हैं, यहाँ गिरजाघर में भी, और जो ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हुए हैं हर एक को स्वागत करते हैं। आमेन। क्रूस को उठाया है, मौत को हराया है, क्रूस को उठाया है, मौत को हराया है, अनुग्रह से उसके हमने उद्धार पाया है, अनुग्रह से उसके हमने उद्धार पाया है। कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम, तो करो जय जयकार, 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 तो करो जय जयकार। उसकी जय जयकार करते रहे। हालेलुया। वो महान परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु हमारे साथ है। आमेन। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदा ने कितना हसीन
नाम से हम जमा होते हैं, उसके नाम की आराधना करने के लिए वहाँ वो है, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा वो है। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं प्रभु को। Thank you Jesus, we worship you God Almighty. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है, हर सब जो उसका है
जीवन खुद मौत सही उसने, क्या खूब है कुर्बानी। हालेलुया। आज के दिन हम याद करते हैं, जैसे आज प्रभु भोज का दिन है, आज हम याद करते हैं प्रभु यीशु मसीह हमारे तुम्हारे लिए उस क्रूस पर अपने जान दिया। हालेलुया जीसस। धन्यवाद देते हैं उसकी महानता के लिए, उसके प्रेम के लिए, परमेश्वर का प्रेम जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दर्शाया गया। हालेलुया। उस क्रूस पर धन्यवाद हो प्रभु। Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. We give you all the glory and honor, God Almighty. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Lord,
to worship you, Lord, to be in your presence, O God Almighty. This is our desire, Lord. Everything that we have, Lord, every breath that we have, Lord, we'll worship you, Lord, in spirit and in truth, O God Almighty. We thank you this afternoon, Lord, for your love and your mercy upon our lives, O God. Thank you, Lord, for coming into this world, dying for us, suffering for us, paying the price for us, Lord, that we can live, O God Almighty. You died, O God Almighty, so that we can live, O God. We thank you this afternoon. In Jesus' name, I pray for each and every one of them, O God Almighty. Those even that are online, Lord, those that are sick, O God Almighty. I pray that you touch them and heal them, O God Almighty. In Jesus' name, in Jesus' name. Those that are going through hardship, Lord, I pray that you be with them, Lord. Comfort them, O God Almighty. In Jesus' name. Just commit this service once again into your hands, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. 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 May be seated. Just want to welcome you all once again in Jesus' name. Hallelujah. My voice is just going out, but I thank the Lord that we can sing and praise and worship Him. Amen. Hallelujah. परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज एक बार फिर से। महान परमेश्वर है, उसके प्रेम के लिए, उसके महानता के लिए, और हम यही कह सकते हैं कि हमारा प्रभु हमारे साथ है, वो हमें कभी त्यागेगा नहीं। आमीन। इस समय वचन में जाएंगे, और आज का वचन जो है, मोस्ट ऑफ अस, हम लोग ये स्क्रिप्चर को सुना है। ये फ्रेज जो है, टेक अप योर क्रॉस एंड फॉलो मी। प्रभु यीशु मसीह ने खास कहा था, इफ यू वांट टू फॉलो मी, बेसिकली यू हैव टू टेक अप योर क्रॉस एंड फॉलो मी डेली। इसका मतलब क्या है? हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह जब उस क्रूस को उठाया था और उस पहाड़ी की ओर चल रहा था, इट वाज अ वन वे जर्नी, वो रिटर्न जर्नी नहीं रहा है। एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड, जब प्रभु यीशु मसीह ने बताया है कि उसका क्रूस को हम उठाकर लेकर चलेंगे, तो बेसिकली व्हाट इट मींस इट्स अ नो रिटर्न। जैसे हम लोग उस गीत को गाते हैं, आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस, नो टर्निंग बैक। हम लौटेंगे नहीं, हम आगे बढ़ते रहेंगे प्रभु यीशु मसीह के साथ में। वो हमारे साथ है। जब उसने कहा है कि टेक अप योर क्रॉस एंड फॉलो मी, दैट मींस वो हमारे साथ है, राइट? ही इज विद अस। लॉट ऑफ टाइम्स हम लोग अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, और कभी कभी हम लोग बोलते हैं यस आई अंडरस्टैंड कि हाँ आई एम टेकिंग माई क्रॉस, आई हैव पुट अप माई क्रॉस, जो हमारे कांधे पे है हम लेकर चलते हैं। इज नॉट टॉकिंग अबाउट, जो एक्चुअली जो लोग कहते हैं कि नाउ आई हैव ऑल दिस बर्डन्स है, ये प्रॉब्लम्स है हमारे, इट्स अ क्रॉस फॉर मी। क्रॉस जो है, इट रिप्रेजेंट्स बेसिकली जो दुख तकलीफ प्रभु यीशु मसीह जो उठाया था, एंड इट्स अ वे, एक्चुअली डेथ रिप्रेजेंट करता है, मृत्यु रिप्रेजेंट करता है, द क्रॉस। जब हम रोमन टाइम्स में हम देखते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह जीवित था, जो हार्डन क्रिमिनल्स थे, उनको क्या करते थे? उनको मौत की सजा मिलता था, तो इनको क्रूस पर लटकाया जाता था, एंड दे वर सपोज्ड टू कैरी देयर क्रॉस, जहां पर उनको उस क्रूस पर लटकाया जाएगा। दे हैड टू डू इट देमसेल्व्स। तो ये क्रूस तो बना हुआ था, लेकिन ये लोग को उठाकर उस जगह पर लेकर जाना था। एंड देन प्रभु यीशु मसीह को भी, बट वाज ही हार्डन क्रिमिनल? Bible doesn't tell us that he was a hardened criminal. If you want to say that he was a hardened criminal, he was a hardened criminal for God. वो परमेश्वर के काम करने के लिए आया था, लोग के काम करने के लिए। लोग वहाँ पर सोचते थे कि प्रभु यीशु मसीह आया है और वो हम लोग के एक राज, नो एवरीथिंग्स गोना बी फाइन, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, राइट? जैसे हम लोग देखते हैं जेरूसलम में जब प्रभु यीशु मसीह लास्ट टाइम प्रवेश किया था, जो डोंकी के ऊपर राइड करके लोग देखा, तो वो लोग समझ गया कि हाँ, जो लोग के उद्धार करने वाला वो आ गया है और उन लोग को मदद करेगा और नया गवर्नमेंट फॉर्म करेगा और ये ज्यूइश पीपल लोग आज़ाद हो जाएंगे।
लेकिन ये वो काम करने के लिए प्रभु यीशु मसीह नहीं आया था। वो इस काम के लिए आया था कि हर एक इंसान को पाप से बचाने के लिए, रिहाई देने के लिए, ताकि वो परमेश्वर के पास जा सके। उनको एक जिंदगी मिलेगा, नया जिंदगी, जो परमेश्वर के साथ में रह सकेंगे। तो हम लोग अच्छी तरह से देखेगा जो ये क्रूस के जो डेथ था, इट वाज अ ह्यूमिलिएटिंग डेथ। और जब ये लोग जो क्रिमिनल्स लोग उस क्रूस को लेकर जाते थे, पीपल वर लाफिंग एट देम, दे वर मॉकिंग देम। एंड यू नो व्हाट, प्रभु यीशु मसीह के साथ भी ऐसा हुआ। He could have retaliated, but he did not. वो नहीं retaliate करा, but he continued to do that. And then एक और भाई आया, उसको मदद किया। सोल्जर्स लोग उसको बताया कि उसको लेकर उसको मदद करो। But hardened criminals लोगों को नहीं कोई मदद मिलता था। No matter what they had to go through, they had to take their cross. But here Jesus was given that help. It was a privilege for this person कि वो क्रूस को उठाकर लेके चले। And I was thinking about it, क्यों उसको चुना? जैसे प्रभु यीशु मसीह ने मरने से पहले बताया था, you need to take up your cross daily and follow me. First of all, हम लोग को देखना है कि ये क्रॉस क्या रिप्रेजेंट करता है। क्रॉस रिप्रेजेंट्स डेथ, बेसिकली मृत्यु। हम लोग को अपने आप को मानना जरूरी है। इट्स नॉट कि हम लोग जैसे उस स्क्रिप्चर में हम लोग पढ़ते हैं, यू हैव टू डिनाई योरसेल्फ, नो, अपने आप को डिनाई करें। टेक अप योर क्रॉस, फॉलो मी, सिंपली टू कमिट टू अ पॉइंट ऑफ गिविंग अप आवर होप्स, ड्रीम्स एंड पोजेशन, इवन आवर वेरी ओन लाइफ। मतलब जैसे उस गीत को हम गाते हैं, आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस। जिस व्यक्ति ने उस गीत को लिखा था, उसके जीवन में ऐसा ही हुआ था, right? And he said, I don't care what happens, everything goes. हमारा सब कुछ, हमारा परिवार, सब कुछ चला गया। उसकी आंख के सामने सभी कुछ चला गया। उसके बच्चे, उसके बीवी, उसके परिवार, सभी कुछ, उसके घर को जला दिया गया, सब कुछ। But he was still saying, I have decided to follow Jesus. There's no turning back. जो राजा था वो सोचने लगा, जब उसके मृत्यु के बाद में सोचने लगा, इसके पास क्या था कि वो प्रभु यीशु मसीह को नकारा नहीं, उसको स्वीकार किया और उसके पीछे रहा। He said there's no turning back, and he found that it was the love of God that was manifested through Jesus. And guess what? He became a believer, and the whole village, जो उसके किंगडम था, सभी लोग प्रभु यीशु मसीह का हो लिए थे। Anyways, that's another story. लेकिन यहाँ पर जो है, the cross was an instrument of death. What Jesus was referring to is the commitment to him. प्रभु यीशु मसीह जो वहाँ पर लोगों को बता रहा था, जैसे उसमें कहा कि you need to take up your cross daily and follow me. अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो लो। उसका मतलब वही प्रभु यीशु मसीह कहता था कि तुम कमिटमेंट बनाओ कि तुम हमारे पीछे हो लोगे। There was certain people आया प्रभु यीशु मसीह के बताया कि Lord, we want to follow you. प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ये करो, फॉलो जो लॉज वगैरह है फॉलो करो। तो उसने कहा कि yes, I have been following that all my life. Nicodemus ने कहा कि I've done that all my life. Then Jesus said, sell your position and come after me. And he was taken back, basically. क्या वो उसको फॉलो किया? No, he went back where he said. प्रभु यीशु मसीह यही बात हम लोग के समझाने के लिए इस व्यक्ति के विषय में बताया। जैसे कहा, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter into the kingdom of God. मतलब कि एक धनवान के पास धन दौलत सभी कुछ है दुनिया में, तो उसके फोकस उधर ही रहेगा, उसके दिल वही में लगा रहेगा, right? That goes for any poor person too, right? But then they will weigh the things, right?
जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो वही करेगा कि प्रभु यीशु मसीह में नया जीवन देता है, अनंत जीवन देता, हम उसके साथ में रहेगा। एंड देन हियर आई हैव ऑल दिस पोजेशंस इन दिस वर्ल्ड, राइट? इसको हम लेकर यहीं पर हम अपना जिंदगी बिताएंगे, मे बी 60, 70, 80, 90, 100 years, तो फिर उसके बाद में क्या? लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें जो देता है वो इस दुनिया के बाद भी हमें मिलता है। तो हम क्या तय करेंगे? प्रभु यीशु मसीह इसको भी बताया था जॉन 3:16 में, जैसे बताया है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, और जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। अनंत जीवन हमें कब मिलता है? जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण कर लेते हैं। दैट मीन्स जैसे आज हम लोग प्रभु यीशु मसीह को हम ग्रहण किया है, मतलब कि हमें अनंत जीवन वो मिल गया है। लेकिन वो डेली वॉक है, जो यहाँ पर स्क्रिप्चर है, टेक अप योर क्रॉस एंड फॉलो मी डेली, ये उसमें बीच में आता है। यही हम लोग को समझाता है कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे हम लोग चलना। जब उसको स्वीकार किया है, राइट? इट्स नॉट दैट कि हम लोग एक दफे स्वीकार किया एंड वी आर सेट टू गो, वी आर प्रोटेक्टेड। नो, इट्स नॉट सो। स्वीकार किया है, उसके बताए हुए रास्ते पर चलना है। ये जरूरी है, ये जरूरी है कि हम उसके पीछे हो ले, उसको वो क्रूस को उठा ले, अपने आप को डिनाई कर दे, राइट? वी डिनाई आवरसेल्व्स बेसिकली, राइट? Verse 23 में, Luke 9:23 में कहता है, and he said unto them, if any man will come after me, let him deny himself, take up his cross daily and follow me. Deny, right? Deny himself. शायद हम लोग सोचते हैं कि जैसे हम लोग जब फास्टिंग करते हैं, भोजन नहीं करते हैं, शायद हम लोग चाय नहीं पीते हैं, चाहे हम लोग पॉप नहीं पीते हैं, कुछ हम लोग अलग से कर देते हैं कि we won't go through that, right? We won't do that. There's different ways of fasting, right? Deny कर देते हैं, but ये denial नहीं है. These are all good, but ये वो denial जो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर बताता है वो नहीं है. All he's talking about is अपने आप के हमारे जो दिल के चीज है, जैसे मैंने यहाँ पर पढ़ा है, taking up the cross to follow Jesus simply means commitment to the point of giving our hopes, dreams, possessions, even our very life, if needed be. सभी कुछ उसको हम लोग अलग कर दे, त्याग दे. It doesn't mean कि हम लोग उसको त्याग दिया and then we don't stop living. No, हम लोग जिए, दुनिया में जिए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को पहला स्थान दे. Right? For whosoever will save his life shall lose it, but whoever will lose his life for my sake, the same shall save it. Right? And then the scripture में कहता है, what does a man profit if he gains the whole world but he loses his soul? दुनिया के सारे चीज उसके पास रहता है, लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में नहीं ग्रहण किया, तो क्या फायदा उसको रहेगा? क्योंकि हमारा जो आत्मा है वो कभी मरेगा नहीं. इस दुनिया से में ये बॉडी में है वो आत्मा, एक दिन ये बॉडी को छोड़कर परमेश्वर के पास जाएगा, न्याय होगा, फिर वहां से हम लोग के उस जगह भेजा जाएगा जहां पर जो जब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है तो हमें स्वर्ग में भेजा जाएगा, जो उसको नहीं ग्रहण किया है तो हमें नरक में भेजा जाएगा. तुम्हारे अच्छा काम किए इस दुनिया में वो कोई चीज नहीं है, इट्स वैल्यूलेस. पॉल जैसे कहता है कि एवरीथिंग दैट आई हैव इन दिस बॉडी, जो इस दुनिया में हम करता है, इट इज वर्थ नथिंग. लेकिन जो वर्थ है that I have received Christ in my life, उसके जो अनुग्रह, उसके grace जो है, it is more important to me. वो जरूरी है कि हम लोग प्रभु यीशु मसीह के अपने जीवन में ग्रहण कर लें. John chapter 14 verse 15 और 19 में प्रभु यीशु मसीह उसके विषय में बताता है कि हम लोग के जीवन में जब हम लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेगा तो everything is not gonna be smooth.
हम लोग के और दुख तकलीफ आए, बिकॉज Satan will always be attacking us. वो हमें निराशा देगा और हम लोग के he will try to attack us in such a way कि हम लोग प्रभु यीशु मसीह को त्याग दें और फिर उस दुनिया में चला जाए, and then we live a life to our fulfill करे के लिए हमके जीवन में, right? But वो कहाँ तक हमें लेकर जाएगा, वो शांति हमें कहाँ तक मिलेगा? थोड़े समय के लिए रहेगा, वो सब खत्म हो जाए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो शांति देगा वो अनंत काल का है, वो अनंत का शांति है। वो हमें सदा के लिए वो शांति हमारे जीवन में भरेगा, चाहे हम कैसी भी दुख तकलीफ में रहेगा, वो शांति रहेगा कि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, वो हमें निकालेगा, चाहे वो तूफान थमे या ना थमे, लेकिन प्रभु हमारे साथ है, हमें डरने की कोई बात नहीं है। We should not be afraid no matter what kind of storms that we go through, because the Lord said I will be with you. वो तुम्हारे साथ रहेगा, वो तुम्हें त्यागेगा नहीं। जो इसमें जैसे मैंने कहा कि जो क्रूस था, इट वॉज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ डेथ। उस क्रूस पर चोरों को लटकाया जाता था, उनके पैर तोड़ देते थे, भाला मार देते थे ताकि वो मर जाते थे। बेसिकली जब उसको हड्डी तोड़ देते हैं और उसको भाला मार देते हैं तो खून सब बॉडी में से बह जाता है, एंड दे डाई। इट इज एक्सक्रूशिएटिंग एंड ह्यूमिलिएटिंग डेथ। बट प्रभु यीशु मसीह के केस में जब वो क्रूस पे लटका था, उसको मारा गया था, चाबुक से मारा गया, बिफोर इवन वो क्रूस पर लटकाया गया था, उसके बॉडी में से कितना खून बह गया था। चाबुक से जब मारा गया था, पीठी एक जोतल खेत के समान हो गया था, कांटों के ताज उसके सर पर रख के ठोक दिया गया, हाथों में नीले ठोका, पैरों में नीला ठोका गया, दर्द में था, प्यास लगा था, उसको बोला प्यास लगा है तो उसको सिरका पिलाया। क्यों सिरका पिलाया? जैसे जो विनेगर है, जो सिरका है, सावर जो है, वो हमारे पेन को किल करता है। But when they lifted it up to Jesus, he did not drink that. Why? Because he did not want that pain to go away. He wanted to suffer for us, so that there is no way we can say that Jesus did not suffer for us. He suffered all the way, 100% वो सफा किया हमारे लिए, दुख सहा। By saying, take up your cross and follow me, Jesus was giving us a word picture of the concept of death to self. जो हम लोग के पुराना लाइफ है, उसके हम लोग किल करें बेसिकली, उसको हम लोग त्याग दे, एक नया जीवन हम लोग की मिलता है, that spiritual life, and that is with Jesus. जब उसको फॉलो करेंगे तो हम लोग लौट कर उसको हम लोग वहां पर नहीं जाएंगे। आई एम रिमाइंडेड ऑफ इलाइशा, जब उसका कॉल आया, इलाइजा ने उसको पुकारा। व्हाट डिड इलाइजा डू? इलाइशा केम टू इलाइजा एंड सेड, लेट मी गो बैक एंड से गुड बाय टू माय पेरेंट्स एंड आई विल कम बैक। इलाइजा सेड फाइन। ही वेंट एंड किल्ड ऑल द bullocks that he had, or the ox that he had, and even the जो प्लाव था उसको फायर वुड के तरह यूज किया, उसको जलाकर, और जो ये ऑक्स को मारा था, इसको पकाकर लोगों को बांट दिया, खिला दिया सभी को। Why did he do that? Because he did not want to come back to that old lifestyle. जब उसने पैर आगे बढ़ाया प्रभु यीशु मसीह को, इलाइजा को फॉलो करने के लिए, तो वो लौट कर नहीं आना चाहता। But he just needed that little time frame कि वो सब खत्म करके वो उसके पीछे हो ले। And guess what? He did so. वो लौट कर नहीं गया। That reminds us कि जब हम लोग प्रभु यीशु मसीह के अपने जीवन में ग्रहण किया, let us follow him 100%, not just 50%. No, कि एक पैर, जैसे हम लोग कहते हैं दुनिया में रहता है, एक पैर प्रभु यीशु मसीह के साथ में रहता है। No, or like saying
दो नाव पर चलते हैं. We can not do that. और जैसे कहते हैं कि sitting on the fence, right? पता नहीं है किस तरफ गिर जाएगा, किस तरफ की हवा लगेगा, झोंका लगेगा, उस तरफ गिर जाएगा. हम लोग की जरूरी है प्रभु को जब हम लोग स्वीकार किया, उसके बताए हुए रास्ते पे चले, उसके वचन के अनुसार हम चले. एंड आई नो, जैसे वचन कहता है कि हम लोग के लिए वो जगह तैयार करने के लिए गया है और वो लौट कर आएगा. जब हम देखते हैं जो मल्टीट्यूड्स लोग थे प्रभु यीशु मसीह के फॉलो करते थे, they were convinced that he was going to bring glorious kingdom to the earth, freeing them from the oppressive Roman rule. Even his own disciples were thinking this way. Luke chapter 19 verse 11 में हमको बताता है, जो disciples लोग थे, ये लोग भी सोचते थे कि प्रभु यीशु मसीह आया है हम लोग के लिए, हम लोग के रोमन गवर्नमेंट से छुटकारा मिलेगा. Multitudes, they thought Jesus came to rescue them from the Roman government. No, Jesus came to rescue us from the clutches of Satan. He came for everything that God had created for us. वो हमारे जीवन में फिर से लौट कर आए. He came to restore what Satan had taken away from us. वो उसको हराने के लिए आया था, and he did so. कभी आपने सोचा है कि what would be it be like to follow Christ 100%? I know most of us, हम लोग कहते हैं कि yeah, I've decided to follow Jesus, no turning, but from time to time हम लोग फिसल जाते हैं, and then say yeah, it's okay. You know what? The Lord knows. हम लोग के weakness को जानता है. That's why He prepared a place for us. Hebrews की किताब में बताता है, He is the high priest in heaven. He knows our weaknesses. He knows everything. जब हम उसके पास जाते हैं माफी मांगने, come to the throne of grace and ask for forgiveness, and He is ready to forgive us. वो हम लोग के माफ करेगा, and वो रिलेशनशिप फिर से रेस्टोर करेगा. वो पोजीशन जो हमें मिला था हम लोग को फिर से रेस्टोर करेगा, जिसे हम लोग के साम चैप्टर 91 में बताता है. दुख तकलीफ में वो हमारे साथ रहेगा और वहां से निकाल के हमें ऊंचे स्थान पे कर देगा. So what happens is हम लोग वहां पर रहते हैं, from time to time हम लोग फिसल के नीचे आ जाते हैं. क्यों? क्योंकि हम लोग वहां से देखते हैं कि दुनियादारी जो है, it looks good, and we dive into it. हम लोग उसमें आ जाता है, and then all of a sudden we find that we are drowning in it, right? And then we ask God to save us. Guess what? He is merciful. He loves you. जब भी तुम पुकारोगे तो वो सुनेगा, जवाब देगा, वो तुम्हें निकालेगा. He's going to pull you out. फिर से वो ऊंचे स्थान पर रखेगा, क्योंकि तुम उसको जानते हो. परमेश्वर तुम्हें आशीष से भरेगा. Amen. Hallelujah. अपने आप से एक क्वेश्चन करें. Would you still follow Jesus if it meant losing your closest friends? हम जानते हैं जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना दिल से फॉलो करेंगे, without any reservation, our friends will forsake us. हम लोग के जो दोस्त लोग हैं, they will forsake us. Family हम लोग के forsake कर देगा. Would you still follow Jesus if it meant alienation from your family? मतलब कि अपने परिवार से अलग होना. Would you follow Christ if you had to stay away from your family, from your friends? Even if you lost your reputation, would you still follow Christ? ये questions हम लोग अपने आप से पूछ सकते हैं, and we can answer it as well. Right? Sometimes we might fail, but God loves us so much that He made a provision for us कि हम उसके पास आए, माफी मांगे. Would you still follow Jesus if it meant losing your job?
I remember one of my brothers, वो प्रभु यीशु मसीह को बहुत छोटे समय से उसको फॉलो करता था, and one day he lost his job in Vancouver here, and he was so bitter, he did not want to go to church. वो जाना नहीं चाहता, प्रभु के वो सर्व त्याग दिया था. Are you gonna be one of those? But then he repented and he came back to the Lord, and the Lord is using him in a mighty way. Would you still follow Jesus if it meant losing your life? कितने जो missionaries लोग को हम जानते हैं, they have gone through a lot of hardship. जान के खतरा था. Would you be in that position and still follow Jesus, or you would say no, 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 no? जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा take up your cross and follow me daily, यही मतलब था कि शायद हम अपना जान भी लूज कर दें, अपना काम भी लूज कर दें, रेपुटेशन, फैमिली, फ्रेंड्स, सभी कुछ लूज कर देंगे. What does it profit a man to gain the whole world but to lose his soul? दुनिया में हमारा रेपुटेशन रहेगा, धन दौलत रहेगा, सब कुछ रहेगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में नहीं है तो कुछ भी नहीं है. It is a waste. Because एक दिन हर एक व्यक्ति को परमेश्वर के सामने खड़ा होना जरूरी है. हम खड़े होंगे, क्या हम कह सकेंगे, क्या परमेश्वर कह सकेगा वेलकम, वेलकम टू पैराडाइज बेसिकली? क्या वो कहेगा कि वो कहेगा डिपार्ट फ्रॉम मी, योर प्लेस इज प्रिपेयर्ड इन हेल? जरूरी है कि हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करें, उसके बताए हुए रास्ते पर चले. आमीन. प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बहुत कुछ किया है. हम क्या कर सकते हैं उसके लिए? All he wants us to follow him daily. कितने लोग हैं हम जानते हैं, सुबह को उठते हैं, before they do anything they go down on their knees or sit at on the bedside और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज हम अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हैं. I commit myself into your hands. I pray for your blessing in my life. ये प्रार्थना है. If you're not doing it, let's start doing this. जैसे मैंने बताया कि साम्स की किताब हम लोग पढ़े, एक चैप्टर डेली हम लोग पढ़े. हम जानते हैं परमेश्वर के आशीष उनके जीवन में आएगा. It's going to encourage us. David was a man of faith. वो परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा. उसका भरोसा परमेश्वर के ऊपर था, उसका फोकस परमेश्वर के ऊपर था. जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं तो यही हम लोग कहते हैं कि I have decided to follow Jesus and there's no turning back. In other words, we are taking up that cross and we are following Christ and there's no turning back. Amen. Let's look to the Lord in prayer. Heavenly Father, we thank you once again this afternoon, Lord. We thank you for your words of encouragement, oh Lord, reminding us, Lord, that we need to take up that cross to follow you, God Almighty. That means to death to ourselves. But there is life in us through you, God Almighty. Thank you, Father. I pray for your divine touch for your children this afternoon, God Almighty. In Jesus' name, I just commit them all into your hands, Lord. Those who have made the commitment to follow you, O God Almighty, that I pray that you will strengthen them, Lord. Lead them and guide them, O God Almighty, in a very special way, O God Almighty. Let your Holy Spirit minister to them, O God Almighty. In Jesus' name I pray, Lord. Amen. 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 एक और गीत को हम गाएंगे, उसके बाद में अपना सभा खत्म कर देंगे. Hallelujah. Thank you, Jesus.
के वसीले हो गए पाप क्षमा तेरे सलीबी की यीशु मांगे रोगी शिफा। धन्यवाद देते प्रभु को। जब हम उसकी क्रूस के पास आते हैं तो हम उसको यही दिलाता है, याद दिलाता है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारा कर्जा वो चुका दिया, जो हमें चुकाना था उस क्रूस पर वो चुका दिया और हम आजाद हो गए उसके लहू से, उसके खून से। आज हम धन्यवाद देते प्रभु को। Father, we thank you once again, O God Almighty. We give you all the glory and honor, God Almighty. In Jesus' name, may your Holy Spirit continue to minister to us, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. God bless you, and we'll see you on Wednesday night. Till then, the Lord be with you.